Hello everyone. Today we are going to start new topic alcohol, phenols and ether. Oh, first question that comes in our mind: what is alcohols? And if we go with a definition, alcohols means hydroxyl group, hydroxy groups attached to sp3 carbon. Okay, we can see here. I made here a structure of methane CH4. Okay, you know that methane formula is CH4. Okay, and we write a structure like this, we draw a structure like this of methane. Now when from this methane this H comes out of the structure and hydroxy get included in the structure, that means uh, hydroxy group, OH group is getting bonded with a sp3 hybridized carbon. Okay, this is only alcohols. Okay, and फिनोल में क्या होता है, आप सिंपल देख सकते हो कि फिनोल पे आपका यहाँ पर ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप मैं बनाता हूँ ऐसे करके, वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन के साथ. ओके, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है. सिंपल, दिस इज़ अ फिनोल. ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि बेंजीन के साथ अटैच्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ईथर? Ether is when two alkyl groups is connected via an oxygen atom, then that structure is known as ethers. Okay, got the point? Alcohol is clear, phenol and ether is also clear. Now we had completed the introductory part of our first lecture. Now we are coming towards the next topic, classification of alcohols on the basis of number of hydroxy groups. Okay, see here, here 1 2 means ethanol. This is a structure of ethanol. Okay, ethanol spelling ethanol, ethanol. Okay, ethanol structure is there and only one hydroxy group is present over here, so that means this is a monohydric. Okay, we can classify alcohols on the basis of number of hydroxy groups. First is monohydric, second is dihydric, and third is polyhydric. Monohydric means only one hydroxy group will be present over there, and when there's two hydroxy groups we will say it as a dihydric group, dihydric alcohols. Okay, and when OH groups will be more than two, then we'll say it as a polyhydric alcohols. Okay, for monohydric we have given an example ethanol. When only OH group is present in ethane and one H is removed, and instead of that one H OH comes here, so that means this is a monohydric. Okay, and then here CH2OH, again here is only one hydroxy group is present, so this is also an example of monohydric. Okay, this is not a phenol, please notice here, this is not a phenol. ओके, दिस इज नॉट फिनॉल. फिनॉल डायरेक्टली अटैच होता है. ठीक है, डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ. पहला बात तो यहाँ बेंजीन है नहीं. ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है आपको. नाउ नेक्स्ट इज डाईहाइड्रिक. डाईहाइड्रिक मीन्स two hydroxy group will be present over in the structure. Here we are seeing here CH2OH and CH2H. okay, इसका आईयूपीएक नेम आप प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन पे इसका नॉर्मल आईयूपीएक नेम आप बता सकते हो, और इसका जो कॉमन नेम है वो इथिलीन ग्लाइकोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी you can comment over here what the IUPAC name of this compound and IUPAC name of this also. Here CH2S, CH2S, CH2H. IUPAC nomenclature of this compound will be propane. 1 2 3 prop. 3 carbon is there, that means prop, and 3 hydroxy group is present over here. So propane 1 2 3 triol. This will be a IUPAC nomenclature for this. ठीक है, glycerol. This common name is glycerol for this structure. Okay, and this is a example of polyhydric hydroxy groups. Okay, got the point? Everything is clear. Classification of alcohols on the basis of number of hydroxy groups. Okay, this is ethane 1,2-diol, 1,2-diol, and this is propane 1,2,3 triol. TRIOL. Okay, propane 1,2,3 triol. Now next, we will classify based on the type of carbon attached to the
OH group. Okay, we know there are three types of carbon on the basis of hybridized carbon. First is sp, sp2 and sp3, sp2 and sp3, और उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और एक होता है टर्सरी कार्बन भी होता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। बट प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ेंगे। लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल जस्ट हियर। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया हुआ एग्जांपल देखो, RCH2OH। तो यहाँ पर ही आप देखो कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है ना, तो वो कार्बन क्या है, वो एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। देखो वो एक प्राइमरी कार्बन, मतलब वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो एक प्राइमरी कार्बन है। ओके, समझ में आ रहा है। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से, मतलब ये कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसी कार्बन से दूसरा कार्बन कितना, एक ही ग्रुप, एक ही कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, यार है मतलब एक ही है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी है ना। यहाँ मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, जैसे कि अब यहाँ पर ही करता हूँ, यहाँ OH लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ आई just connected OH group, hydroxy group over here. Okay, now tell me for this carbon is primary carbon or secondary carbon? This carbon is secondary carbon, because the carbon which is connected with the hydroxy group is itself a secondary carbon. So that means this is a 2-degree alcohol. This is 2-degree alcohol. Got the point? This is a very easy concept. Okay, got the point? And here I have given an example of secondary R2CHOH is the basic naming, like this. Isopropanol, we can see here isopropanol. This is structure of isopropanol. Okay, this is example of tertiary also. Okay, this example of tertiary alcohol, TRTI यार भाई, tertiary एल्कोहल। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ठीक है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, अगर वो नेक्स्ट एक कार्बन से ही जुड़ा है तो वो प्राइमरी है। अगर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, अगर वो 2 डिग्री है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, अगर वो 3 डिग्री है तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। सिंपल देखो, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। कुछ भी दिक्कत है आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिनॉल्स को तो अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि फिनॉल्स को हम सेकंड कवर करेंगे। फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नॉर्मली एक फिनॉल का एक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है। ओके, अलॉन्ग विद द बेंजीन हियर इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट मींस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो फिनॉल के साथ यहाँ पर ही ऑर्थो पोजीशन में देखो, ऑर्थो पोजीशन में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कॉमन नेम इसका कैटेकॉल भी है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ही 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल। एक फिनॉल में देखो एक बेंजीन है, उसमें 2 OH लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखो, सबसे पहला देखो, हम सारा चीज़ नहीं कर सकते आज हम कुछ टॉपिक्स कराएंगे और 6-7 क्वेश्चन जो JEE मेंस में आया हुआ है 2025 में, वही वाला करवाएंगे। अभी जो 2025 में आया हुआ है वही, ठीक है, एकदम लेटेस्ट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखो, अल्काइल हैलाइड देखो, अब यहाँ से देखो हियर वी आर सीइंग एक हैलाइड दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, 1,2 कार्बन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1,2 मतलब कि इथेन, और ये क्लोरीन है, ये एक इथाइल क्लोराइड है। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में हम जब एक्वस की वजह से वो प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन आना चाहिए अल्काइल हैलाइड के लिए। अगर SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं पता है तो एक तो स्टोरी बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा कि SN2 रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ कि SN1 और SN2 रिएक्शन होता क्या है। तो SN1-2 रिएक्शन के लिए एक स्टोरी आपको समझना होगा। ये स्टोरी क्या है, ये SN1 और यहाँ पर ही SN2, ये स्टोरी क्या है ना। SN1 में देखो एक फादर है, ठीक है, फादर के 3 बच्चे हैं। तो वही है कि हम लोग स्टोरी क्या देख रहे थे कि फादर का 3 बच्चा है, मान लो 3 बेटा है, ठीक है, 1 2 3 बेटा है, 1 2 3 बेटा है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से ही हम समझते हैं कि SN1 होता क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, अब देखो ये जो है ना, ये है मान लो उसका ग्रैंड पेरेंट,
फादर ने, हाँ फादर मान लो, क्या है ये मान लो कि क्या है, फादर है। अब फादर क्या है ना, इन तीनों लड़का से, उसके तीनों जो लड़का है, जो बेटा है, उससे परेशान है, तो ये घर छोड़ के जाना चाहता है। क्या करना चाहता है? घर छोड़ के जाना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये लीव करता है, घर को छोड़ के चल जाता है। ठीक है, तो भाई घर को छोड़ के जाएगा तो इसका जगह जो है, ये वाला जगह जो है, ये तो खाली हो जाएगा ना, है ना। तो ये वाला, सॉरी, यहाँ पर ये वाला जगह तो खाली हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन बन जाता है, क्योंकि वो उसका जो पापा है वो बच्चा से, अपना लड़का लोगों से परेशान होकर चल गया। तो अब यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये किसका बात कर रहे हैं हम? SN1 का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फिर क्या होता है ना, अब देखो, अब जगह खाली है ना, जगह खाली है, तो क्या करते हैं चाचा चाची अंकल्स लोग, क्या करते हैं हमारे रिलेटिव्स, इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं जो हमारे रियल लाइफ में रोज़मर्रा दुनिया में हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, जगह को लेना चाहता है कोई, तो यही क्या होता है, यहाँ पर ही कुछ जो थर्ड पर्सन है वो आके यहाँ पर ही जगह लेता है, मतलब कि वो अटैक करता है उसके पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ फ्रंटली अटैक होता है, फ्रंट से अटैक होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ याद रखना है हम लोग, यहाँ पर ही जो यहाँ पर ही होता है रेसमाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? रेसमाइजेशन, मतलब कि यहाँ पर ही R और S स्ट्रक्चर बनता है, एनांसियोमर बनता है। ठीक है, और ये वाला चीज़ हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को बना के लेके चलना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू टेक पोलर प्रोटिक solvent, we have to take polar protic solvent, and polar protic solvent like H2O or alcohol, we can take H2O or alcohol like QH, sodium hydroxide, like this we can take polar protic solvent, and alcohol we can take KOH or NaOH. KOH means potassium hydroxide and NaOH means sodium hydroxide, and we know that QH is and sodium hydroxide is a strong base also. Okay, it's also polar protic solvent and also a strong base. Okay, so here it carbocation forms in first step, formation of carbocation occurs, and in second steps attack of nucleophile. Nucleophile means nucleophiles means they are lover of nucleus. दे आर लवर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब उनको प्यार किनसे है? उन लोग को प्यार है पॉजिटिव चार्ज से, उन लोगों को प्यार है न्यूक्लियोफाइल जो भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को प्यार होता है पॉजिटिव से। अगर उनको प्यार पॉजिटिव से है तो यार देखो, बॉयज़ को गर्ल्स से प्यार होता है, गर्ल्स को बॉयज़ से प्यार होता है। तो वही एग्जांपल लेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तभी ना वो पॉजिटिव को प्यार करता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, तो ऐसे समझो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव में अटैक करता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो नेगेटिव होगा कुछ। ठीक है, तो इसी से हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर हम समझाए है सारा चीज़। देखो CH3 और यहाँ पर Cl है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो उसके जो फादर थे वो निकल के चल गए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जगह खाली हुआ। देखो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर यहाँ से Cl- देखो निकल गया, मतलब ये जो उसके फादर है वो निकल गए घर से छोड़ के। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का अटैक होता है। कार्बोकैटायन का अटैक, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकैटायन पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH- है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, तो यहाँ पर अटैक होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, देखो CH3 और OH आके यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से SN1 रिएक्शन होता है, Cl निकल गया, OH आके लग गया, बस सिंपल है। ठीक है, रेसमाइजेशन होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, H2O और अल्कोहल हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, और SN2 रिएक्शंस क्या होता है? SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेल्डन इन्वर्सन भी बोलते हैं, जहाँ पर एवरीथिंग इन स्टेरियोकेमिस्ट्री गेट रिवर्स्ड। ओके, SN2 में भी यही सेम स्टोरी है। यहाँ पर भी जो फादर रहते हैं वो निकलना चाहते हैं, है ना, बट फादर डायरेक्टली नहीं निकलना चाहते। पहले क्या होता है ना, पीछे से षड्यंत्र रचा जाता है। हम यहाँ पर समझाते हैं पीछे से। यहाँ पर ही जैसे ये पीछे से अटैक होता है, ये जो थर्ड पर्सन है, जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से षड्यंत्र रचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, षड्यंत्र रचाता है। यहाँ पर ही एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ये अभी निकले नहीं है, देखो Cl, मतलब जो ये फादर है वो निकले नहीं है, अभी पीछे से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे जैसे षड्यंत्र पूरा प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये यहाँ से निकल जाता है और OH आके पीछे से यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ही हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, जबकि एसीटोन हो गया या फिर DMSO को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, DMSO को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, और जो
SN1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर ही देखो आसानी से निकल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप्स क्या करते हैं, इसको Cl को आराम से निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा CH3 होगा है ना, जितना ज़्यादा इथाइल ग्रुप्स होंगे वो उतना जल्दी निकालेंगे, ठीक है। Cl को उतना जल्दी बाहर फेंक देंगे, ओके ना, तो समझ में आ रहा होगा। क्योंकि वो क्या करते हैं बताओ, वो इलेक्ट्रॉन देते होंगे तो यहाँ से निकल जाता होगा, ओके। और SN2 में क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है? क्यों 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि बल्कि जितना कम होगा यहाँ पर, जितना बल्कि कम होगा यहाँ पर, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ कम होगा, तो भीड़ भाड़ कम होगा तो यहाँ पीछे से जल्दी से आसानी होगा उसको, ठीक है, षड्यंत्र रचने के लिए और अटैक करने के लिए आसानी होगा। जितना ज़्यादा भीड़ होगा, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर रहेंगे, मान लो 3 डिग्री है तो बहुत मुश्किल होगा, 2 डिग्री है तो थोड़ा मुश्किल, 1 डिग्री में बहुत आसानी से वो काम करके निकल जाएगा अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्कीन से। ये सारा चीज़ हमें दिखा दी है कि जैसे Cl निकलता है तो एक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड SN2 होता है तो OH निकलता है, और यहाँ पर Cl है तो बस Cl को हटाओ OH लगाओ, ठीक है। यहाँ से Cl को हटाओ OH लगाओ, बस यही चीज़ करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ही मार्कोनिकॉफ को आप याद कर सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा यहीं पर बताते हैं मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहीं पर ही समझा देते हैं, एक ही बार में समझा देगा। जहाँ पर ही H+ ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर ही H ज़्यादा होता है H+ वहाँ जाके लगेगा, ठीक है। जहाँ पर ही H ज़्यादा होता है, जिस साइड में H ज़्यादा होता है उस साइड में H+ जाके लगता है, और जिधर H कम होता है उधर नेगेटिव लगता है, मतलब कि वो मार्कोनिकॉफ है, ठीक है। एक याद रखो, जिधर H ज़्यादा होगा H उधर लगेगा, जिधर H ज़्यादा होगा H उधर ही लगेगा, ठीक है। मतलब जिधर H अमीर है, जिधर H अमीर है उधर ही जाके H लगेगा। अमीर के पास जा रहा है, ठीक है, अमीर के पास जा रहा है, ओके। H के पास जा रहा है, H अगर ज़्यादा है तो H उसके पास चल जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ में होता है। और नेगेटिव उल्टा हो जाएगा, जिधर H कम उधर चल जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ में ही होता है, ठीक है। अब ये अच्छा, तो आप मार्कोनिकॉफ का यहीं से देख सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ में क्या होता है। मार्कोनिकॉफ में जिधर H ज़्यादा होता है H+ वहाँ जाके लगता है, और जिधर H कम होता है उधर माइनस पार्ट जाके लगता है, ओके। इसका एग्जांपल अभी हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रॉम एल्कीन्स बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पर एक एल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ से मैकेनिज्म आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एल्कीन है, ठीक है, रुको यहीं पर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मान लो एक एल्कीन हम बना देते हैं, ऐसे करके एल्कीन बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको HCl से पास करते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन से एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवाना है। क्या होता क्या है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको एल्कीन है, तो जब यहाँ पर जो H+ है, ये H+ क्या करता है, H+ करता है प्रोटोनेट, ठीक है। ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड दिख रहा है ना डबल बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पर कर देगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर कर देता है पॉजिटिव। यहीं क्यों हुआ, या तो पॉजिटिव यहाँ होता या तो पॉजिटिव यहाँ होता, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये जब बॉन्ड टूटेगा या तो पॉजिटिव यहाँ होगा या तो पॉजिटिव यहाँ होगा, ठीक है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव या तो इधर होगा या तो इधर होगा, बट तुम्हारे हिसाब से किधर होना चाहिए बताओ। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो पॉजिटिव किधर होना चाहिए, इधर, ठीक है। तो मेला काट रहे हैं हम, यहाँ पर रियल लिख रहे हैं कि जो पॉजिटिव होगा यहाँ होगा। जब वो H+ प्रोटोनेट करेगा तो पॉजिटिव, जहाँ पर ही 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो पता है कार्बोकेटायन 3 डिग्री स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से बस इसी के बेस्ड में एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। चलो आते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये लिए थे एल्कीन, यहाँ पर H+ आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज प्रोटोनेट किया ऐसे करके, ठीक है, प्रोटोनेट का फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर देखो ये प्रोटोनेट हुआ है, तब यहाँ पर ही वाटर भी रहता है ना, हाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर भी रहता है। तब यहाँ पर अब यहाँ पर जो ये वाटर का जो O का लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, ये क्या करता है, यहाँ पर ये अटैक कर देता है, ठीक है। अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद ये वाला चीज़ यहाँ पर ही जो O का यहाँ पर पार्ट दिख रहा है लोन पेयर, वो प्रोटोनेट होकर वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे O+, है ना, देखो O+ H, इस तरीके से ये O पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि O यहाँ पर ही अटैक करता है, O का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करता है। तो क्योंकि यहाँ का लोन पेयर उसने दे दिया ना इसको,
इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए दे दिया, ठीक है, प्रोटोनेट कर दिया। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया ओ के ऊपर। अब ये जो ओ के ऊपर पॉजिटिव होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये, क्योंकि ओ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर O प्लस और H इस तरीके से हम लोग अभी देखे थे। तो अब यहाँ पर ये जो O प्लस है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो क्या होता है ना, ये जो H का जो बॉन्ड दिख रहा है, ये H क्या करता है, अपना बॉन्ड इसको देकर, मतलब ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसको देकर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो मतलब ये H यहाँ से निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ OH, ठीक है, क्या बचा, सिर्फ OH। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में होता क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार बता देते हैं, एक बार में फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या है। कोई दिक्कत नहीं मेरे को बताने में मैकेनिज़्म, लेकिन मैकेनिज़्म समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एल्किन लिए है, ठीक है, इसको हम H+ से साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऐसे करके टूटता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये वाला तो 1 डिग्री है, अगर यहाँ पर आएगा तो कार्बोकेटायन 1 बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो स्टेबल ज़्यादा यही है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखो ये पॉजिटिव यहाँ कार्बोकेटायन बना, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब यहाँ पर ही वाटर, मतलब कि O क्या करता है, H इससे आदान प्रदान होता है यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन का, और फिर यहाँ पर ही O क्या हो जाता है, O प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा होगा कि O प्रोटोनेट हो गया। अब O के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करता है, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है O को, और स्टेबल होके यहाँ पर ही OH का फॉर्मेशन हो जाता है और H+ निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम समझाए है कि अगर मान, यहाँ बस यही देखना होता है कि किधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव किधर स्टेबल है। जहाँ पॉजिटिव पता लग गया बस वहाँ पर OH लगा दो, ख़त्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर लिख के दिखाया हैंड रिटन, ठीक है, कि पहले डबल बॉन्ड है यहाँ पर ही H+ से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता है और यहाँ पर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर ही, ठीक है। फिर जो वाटर का लोन पेयर है वो इस पर अटैक करता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर, अपना लोन पेयर इसको दे दिया ना कार्बोकेटायन को। अब अमीर वाला जो अमीर है, ये जो इलेक्ट्रॉन में अमीरी है, ठीक है, वो इसको दे देता है। तो खुद बेचारे के पास थोड़ा कम हो गया पैसा, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है ये, और ऊपर से पॉजिटिव हो गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई बहुत ज़्यादा होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो चाहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, हमको ये ख़त्म करना है, ये पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना देना चाहता है, इसीलिए वो देकर निकल जाता है और OH लग जाता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम समझाया कि जो फिनोल होता है वो इस तरीके का होता है, sp2, ये सब तो हम समझा ही दिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो अल्कोहल और फिनोल, ये जो है ये अल्कोहल है CH2H, ये अल्कोहल है और ये फिनोल है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आता है, किसी को भी हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए हम बता दिए, ठीक है। और दोनों फंक्शनल आइसोमर ज़रूर है, बट हाँ ये देख लो कि अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर रहता है। और नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पर हम बता ही देते हैं कि जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको CH2 और यहाँ पर OH है, और ये क्या है आपको, ये एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरफ OH है, मतलब इधर से फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, कितना मेन चेन में कितना है 2, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर मेन चेन का इथेन, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितना क्या है, फिनाइल है, इसीलिए 2 पे फिनाइल लगा है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, तो 2 पे क्या लगा है, फिनाइल, 2 फिनाइल इथेन 1 ओल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ही 2 मिथाइल फिनोल है, ठीक है, फिनोल है, और फिनोल पे दूसरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताना है थोड़ा सा, कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक अल्कोहल और एक मतलब ROH, और यहाँ पर ही है ये एक वाटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ही
वाटर में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप क्या करता है, ये थोड़ा से क्या करता है, रिपल करता है। क्या करता है, रिपल करता है। बल्की ग्रुप क्या करता है, रिपल करता है। तो रिपल करने से क्या होता है, ये एंगल जो है बढ़ जाता है, ओके। और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ऊपर का लोन पेयर है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड पेयर कम हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम दे दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम समझा देते हैं। ये देखो समझाया हुआ है कि ROH है, तो यहाँ पर एक बल्की ग्रुप, ये R जो है बल्की ग्रुप होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल RO और O के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल बढ़ता है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है वाटर में, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चंस करके दिखाओ। ये आप ये क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार करिए खुद से, ठीक है, जब तक मैं दे रहा हूँ। फिर उसके बाद करके दिखाएंगे हम भी, और उससे पहले आपको करना होगा ये क्वेश्चंस, प्लीज़ आप ये करके दिखाइए। चलो ये सारे क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दो। ये करना क्या, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जल्दी बताओ। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ओके। तो यहाँ दिख रहा है कि H+ है और H2 है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि H+ क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ये वाला टूटता है, तो प्लस चार्ज किधर आता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, वो देखो कि कार्बोकेटाइन यहाँ पर ही बनेगा और एक कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब आपको देखना स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली स्टेबल कौन सा भाई, ये है, ठीक है। कौन सा स्टेबल है, ऑब्वियसली ये है। अब देखो आप यहाँ से आगे चल के भी थोड़ा सा देख लो कि उसका जो बगल वाला है, क्या ये 3 डिग्री तो नहीं। क्यों मैंने बोला, क्योंकि मान लो जैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ 3 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये तुम रह रहे हो अभी झुग्गी में, मतलब कि छोटा सा घर पे रह रहे हो, ठीक है। अब तुम जाते हो एक पक्का घर पे, फिर अब मान लो एक घर तुमने देखा कि वो थर्ड फ्लोर में है, डुप्लेक्स है एकदम मस्त अच्छा से, वो उस टाइप का घर है, ठीक है, डुप्लेक्स टाइप का, ये डुप्लेक्स है, ठीक है। तो 1 डिग्री से वो जाना चाहेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री से जाना चाहेगा 3 डिग्री में, ठीक है। तुम भी चाहते हो कि हम छोटा से बड़ा, बड़ा से फिर और बड़ा में जाए, तो वो भी वही जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के आजू बाजू देखेगा कि 2 डिग्री है, हाँ, तो यहाँ वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर ही आ जाएगा, स्टेबिलिटी उसका यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। फिर आगे जाके देखेगा कि अरे यहाँ पर भी 2 डिग्री है, अच्छा यहाँ पर भी मतलब पक्का ही घर है, तो उससे अच्छा वहाँ जाने से अच्छा हम अपने ही घर पर रहते हैं, मतलब वो 2 डिग्री पर ही रहना चाहेगा। वो देखता है अगल बगल में, ठीक है। अगर यहाँ 3 डिग्री होता तो वहाँ चल जाता, बट यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल अभी यहीं पर ही है, तो यहाँ पर आके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। OH लगना होगा तो OH लगेगा, जैसे यहाँ प्रिम डी है, OH लगना होगा तो OH लगेगा, Cl लगना होगा तो Cl लगेगा, ठीक है। OR लगना होगा तो OR लग जाएगा, ठीक है। PO लगना होगा तो PO लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ समझ में आता है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो इससे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, कार्बोकेटाइन यहाँ पर ही देखो ये 3 डिग्री बन रहा है, 1 2 और ये 3 डिग्री, तो ये वाला क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है।
तो 3 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियसली OH आके यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इस तरीके से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये था कुछ स्ट्रक्चर, तो OH यहाँ पर ही तो तुम्हारा मिथाइल है और OH आके यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ऑब्वियसली ये वाला स्टेबल होगा, ठीक है। ये जब बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, 1 2 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ही, तो कहाँ पर ही OH लगेगा आके हम बता देते हैं, यहाँ पर ही OH लग जाएगा, ओके। यही है ना सारा चीज़। अब यहाँ पर जल्दी से बता दो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड अगर टूटेगा तो या तो पॉजिटिव यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, तो OH यहाँ लगना चाहिए, रॉन्ग, यहाँ नहीं लगेगा, ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, और वही यहाँ पर आ जाएगा जब वही पॉजिटिव चार्ज, जब हाइड्रेशन शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के चलते यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पर 3 डिग्री है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यहाँ पर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे होंगे हाइड्राइड शिफ्ट की मदद से, ठीक है। बाकी ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप देख सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। एक बार आप प्लीज़ ट्राई करिएगा और ये फ़ोटो ले, ठीक है। तो अभी हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का जो JEE मेंस में 2025 में जो अभी रिसेंट आया है, ठीक है, रिसेंट आया है, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन अभी हम देंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहेगा और बहुत ईजी। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये N है, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर ही इथाइल इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर CH है, अब बीच में देखो CH है, यहाँ पर इथाइल इथाइल और यहाँ पर क्लोरीन। इसको मतलब मान के चलो कि ये तो बोर्ड क्या नीट से भी, मतलब बोर्ड और नीट से भी बहुत कम लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, यहाँ पर फास्टर कौन करेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस फास्टर कौन करता है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अभी हम समझाएंगे। यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर समझा देते हैं NGP, ठीक है, नियोगुप पार्टर्स, यहाँ पर देख रहे हो। अब होता क्या है ना, यहाँ पर एक कहानी है, इसका कहानी क्या है, इसका कहानी क्या है, जैसे ये जो बड़ा भाई है मतलब N है, इसको Cl को जल्दी से निकाल देता है, ठीक है, और ये जो CH है, CH उतना जल्दी इसको Cl को नहीं निकाल पाता है, ठीक है। जैसे ये मान लो घर है, घर पे एक टॉक्सिक बंदा तुम्हारा भाई, एक मतलब तुम यहाँ पर हो कार्बन, ठीक है, तो एक टॉक्सिक तुम्हारा दोस्त है और एक है तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है। तो टॉक्सिक वालों को निकालने के लिए ये क्या करता है, ये उसको यहाँ से निकाल देता है और तुमको सपोर्ट करता है, इस तरीके से समझो, ठीक है। ये सपोर्ट करता है क्योंकि ये क्लोरीन को जल्दी निकालेगा, ये नाइट्रोजन देगा और यहाँ से नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देता है और यहाँ से क्लोरीन जल्दी निकलता है, ठीक है। इस तरीके से समझने का ट्राई करो। और CH के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर ही इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है, ओके। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये उसका एग्जांपल था SNI का, ठीक है। तो आगे SNI वाला, तो यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस फास्टर कौन कर रहा होगा, ये वाला चीज़ है। तो इसका तुम आंसर तुम ऐसे ही टिक मार्क कर सकते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो ये 2025 में आया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, कि पूछा जा रहा है इसमें अल्कोहल फिनोल और ईथर और हेलो एल्किन, अल्कोहल फिनोल और ईथर और हेलो एल्किन में, है ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है चैन पे। जितना बड़ा चैन होगा, ठीक है, जितना बड़ा चैन होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, जितना बड़ा जो चैन बनेगा, ठीक है, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, वेंडरवॉल फोर्स उतना ज़्यादा, वेंडरवॉल फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा। वेंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो मतलब कंपाउंड को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा गैस में बदलने के लिए, ठीक है। जैसे CH3OH है, ये जो मिथानॉल है, ठीक है, इथानॉल है, फिर प्रोपानॉल है, ठीक है। मिथानॉल का देखो 65 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इथानॉल का 78 और प्रोपानॉल का 97 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उस चेन, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और हम लोग को एक चीज़ और पता है कि जो अल्कोहल और फिनोल होता है, अल्कोहल फिनोल उसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है,
जो कि यहाँ पर H क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हम लोग याद रखना कि जो अल्कोहल और फिनॉल होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया ना बॉइलिंग पॉइंट। एक वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज़्यादा लंबा चैन होगा उससे पहले डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया है। तो ईथर और हेलो एल्केन में तो होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक तो बना देते हैं, ये Cl बना देते हैं, ठीक है, इथाइल क्लोराइड बना दिए, तो इसमें तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो कौन से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बताओ, अल्कोहल और फिनॉल का। तो समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग मेज़र करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल को अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन करने से होता क्या है, ब्रोमिनेशन करने से होता क्या, हम यहाँ पर समझाते हैं। ब्रोमिनेशन देखो यहाँ पर ही OH है, जब ब्रोमिनेशन होता है, देखो Br ब्रोमिनेशन होता है, जब ब्रोमिनेशन होने से जो ये Br है, Br क्या करता है, ये H यहाँ से ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब कि एक्टिव हो जाता है रिंग, जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन कुछ एक्चुअली इस तरीके से होता है ना, बेंजीन इस तरीके से होता है और ऊपर में ऐसे करके फेनॉक्साइड का आयन है, ठीक है, फेनॉक्साइड बना हुआ है, फेनॉक्साइड, ठीक है, क्योंकि OH में से H निकल गया, ऊपर में से बचा माइनस, ठीक है, H तो Br ले लिया, ठीक है, HBr बनता है ना, HBr, ठीक है। तो फेनॉक्साइड O माइनस। अब यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बन जाता है, हाईली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही ये क्या हो जाता है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक साइट बन जाता है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर साइड बन जाता है। यहाँ पर आके अब पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर अटैक करते हैं, ठीक है, जैसे NO2+, SO3+, ठीक है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन, ये सब चीज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर फेनॉक्साइड आयन बनता है, तो यहाँ से फेनॉक्साइड आयन बनने से फिर यहाँ पर डी लोकलाइज होते हैं जब यहाँ का डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, मतलब 2, 4 और 6 पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बनता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन आके यहाँ पर अटैक करता है। देखो यहाँ पर ब्रोमीन आके अटैक किया, ब्रोमीन अटैक किया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये पैरा पोजीशन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, ऑर्थो से भी ज़्यादा पैरा पोजीशन इसलिए स्टेबल होता है। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर लगाते हैं क्या, OH, और यहाँ पर Br है, यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है। तो सबसे ज़्यादा तुम ही खुद सोचो कौन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होगा, 2 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो ये ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर देखो एक आराम से दूर में बैठा हुआ है, तो ये क्या ज़्यादा स्टेबल है, पैरा पोजीशन इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है देन ऑर्थो और पैरा, देन ऑर्थो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। HBr निकला यहाँ से, HBr निकल गया, हम बताए कि कैसे निकला, क्योंकि H और Br का जो लोन पेयर था वो H ले लेता है, ठीक है, और निकल जाता है, और फेनॉक्साइड आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन आके अटैक करता है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, ये तो बच्चा को पता होता है। यहाँ पर ये पूछा था कि जो मोल्स ऑफ फिनॉल है वो कुछ पूछा था, ठीक है। मोल्स ऑफ फिनॉल तुमको निकालना है कि मोल्स ऑफ फिनॉल से मास दिया हुआ है 2 और यहाँ पर हम लोग इसका फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 94 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 बनाएगा। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकालना है, मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन कितना है, 3 है, तो 3 ब्रोमीन है ना, दिख रहा है 3 ब्रोमीन है, तो 0.021 × 3 करना होगा, जो कि 0.64 आ रहा होगा, ठीक है। फिर मास ऑफ ब्रोमीन निकाल लेंगे, कि एक बार मोल्स निकल गया तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि 10.22 ग्राम आ रहा होगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा JEE मेंस का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। अब ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देख लो आप, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लो ठीक से कि इसमें बोल क्या रहा है। यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ही तुम्हारा मतलब कि पेंटेन और पेंटानोल है, ठीक है, पेंटानोल है, और यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर CrO3 को हम लोग पास कर रहे हैं। CrO3 एक ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा देता है।
तो सबसे पहले ये देख लो CrO3 है, फिर यहाँ पर जो बनेगा फिर हम वहाँ पर इथिलीन, ये देखो हम बताए थे ना इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन होगा, फिर वहाँ से क्यू होगा, फिर यहाँ पर क्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि यहाँ पर H2O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट होगा, फिर यहाँ पर R बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ही R बनेगा, फिर NaBH4 के साथ रिएक्शन होगा जो कि फिर रिडक्शन होता है ना, NaBH4 के साथ तो रिडक्शन होता है, ReDuCtION रिडक्शन होता है, ठीक है, फिर वहाँ पर S बनेगा। तो फिर हम लोगों को ये बताना है S क्या है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो CrO3 हम यहाँ पर समझाएंगे कि CrO3 होता क्या है, CrO3 से होता क्या है, CrO3 से होता है एक्चुअली होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो भी 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे बन जाता है तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के पास, जैसे हम ये बना दे, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के पास यहाँ पर कितना कार्बन हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर देखो, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा कार्बन में देखो कितना है, हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पर एक एल्डिहाइड बनने का चांसेस है, ठीक है। वही अगर जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं, ये बना दो OH, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 डिग्री है मतलब प्राइमरी बन गया, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है कीटोन का, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है और 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। हम बता रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और फर्दर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कोई बता सकता है? 3 डिग्री अल्कोहल से नीलबट्टे सन्नाटा, क्योंकि यहाँ पर तो 3 डिग्री अल्कोहल में कुछ H तो बचता ही नहीं है, अब H ही नहीं बचा तो ऑक्सीडाइज्ड कहाँ होगा, ठीक है। वैसे होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं होता है। ओके, समझ में आया। तो CrO3 जैसे CrO3 है, ठीक है, CrO3 के साथ रिएक्शन होगा, तो मैं खुद ही बताओ कि सबसे पहला चीज़ होगा क्या यहाँ पर ही। अगर हम यहाँ पर ही CrO3 को हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो ये 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल, जल्दी बताओ 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला है क्या, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है 1 डिग्री अल्कोहल, ये एक 2, ठीक है। तो अब हमको हम समझा दें कि CrO3 से हुआ कि 1 डिग्री जो ये दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो हम यहाँ सारा चीज़ बताएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। तो हमें एक बार बता देते करके, CrO3 के साथ जब रिएक्शन होगा एक्सेस CrO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये डबल बॉन्ड मतलब कीटोन बन जाएगा और यहाँ पर ही एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये P बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये P बन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, OH इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो होगा क्या 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल में, कोई बता सकता है ये क्या होता है यहाँ पर ही 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि कीटोन बना या एल्डिहाइड बना और ये इथिलीन ग्लाइकोल है, 1 मोल इथिलीन ग्लाइकोल। तो होता क्या 1 इथिलीन ग्लाइकोल से, ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार बताओ, समझा देता है। इथिलीन, अगर हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन में इथिलीन ग्लाइकोल डालते तो होता क्या, अच्छा ठीक है हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो CrH, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा कि ये तुम्हारा क्या बन गया है, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO और यहाँ पर एक R, ठीक है। जब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है, यहाँ रुको, ठीक है, यहाँ पर ही OH और OH, ठीक है, OH और यहाँ पर ही CH2, ठीक है। जो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर देखो, ये देखो O और इसका H और H निकल जाता है, ठीक है, इसका H और H निकल जाता है वाटर बन के, ओके, ठीक है। फिर देखो R H और यहाँ C है और यहाँ का O और यहाँ का O, एक डबल बॉन्ड टूट गया, O में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ही ऐसे करके एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एसिटल साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक एसिटल साइक्लिक एसिटल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से क्या होता है, एल्डिहाइड है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके से एक एसिटिल साइक्लिक एसिटल बन जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करेंगे तो वो कीटल साइक्लिक कीटल बनेगा, और हम लोग इसके साथ करें तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, मतलब क्यू जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर CH है, ठीक है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर ऐसे करके CH के साथ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था, CH था और एक साइक्लिक बन रहा था तो बना दो, ठीक है, यहाँ पर बना दो ओ इस तरीके से साइक्लिक बना दो, ये बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, यही था, तो ये क्यू बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि यहाँ पर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgI और इन ईथर और H3+, ठीक है। तो CH3MgI है, MgI और H3O+, ठीक है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर ही अगर हम जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ईथर के प्रेजेंट में, इन ईथर के प्रेजेंट में भी अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड ना आ जाए, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है H3O+, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, H+ आता है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जो यहाँ का तुमको वो दिख रहा है, यहाँ पर वो आके अटैक करता है, इसका लोन पेयर पे आके अटैक करता है, ठीक है, लोन पेयर पे आके वो H+ अटैक करता है, ठीक है। और ये बॉन्ड मतलब अब यहाँ पर इसको प्रोटोनेट करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, तो फिर यहाँ से ये जो मिथाइल है, मतलब CH2 है और ये O है और H, ये तीनों यहाँ से ग्रुप बन के निकल जाएगा। हम समझाते हैं अभी क्या हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये निकल जाएगा तो बचेगा लास्ट में तुम्हारे पास एक CHO ग्रुप ही बचेगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में CHO बचेगा। हम बता के दिखाते हैं, देखो होता क्या है, देखो तो ये जो CH3MgBr है, CH3MgI है, तो CH3 देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने बताया CH3 क्या होता है, CH3 माइनस होता है और Mg2+ जो भी है Mg2+I है, ठीक है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा, ये अटैक करता है यहाँ पर जाके, ठीक है, ये क्या करता है, अटैक करेगा यहाँ पर जाके और ये वाला जो बॉन्ड है टूट के ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर जाके CH3 लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बताते हैं हुआ क्या होगा, इस तरीके से हुआ होगा, देखो दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर O- और यहाँ पर CH3 क्योंकि अटैक हुआ ना, ठीक है, अटैक हुआ और यहाँ पर CH था और ये तो एसिटल का बॉन्ड ये जो था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर H+, अब यहाँ का जो H3O+ का, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में H+ और H2 है। जो H+ है ये H+ क्या करता है, इसके लोन पेयर पे अटैक करता है, दिख रहा है, इसके लोन पेयर पे ऐसे अटैक करता है, इसके लोन पेयर पे यहाँ पर दिख रहा है, ये लोन पेयर पे यहाँ पर अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो ये प्रोटोनेट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो O- CH3 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर CH है, ठीक है, CH है, अच्छा H को भी खोल दो, जो ये C है ऐसे रहने दो, C को ऐसे ही रहने दो, H को ऐसे रहने दो, ठीक है। और O क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर O के साथ यहाँ पर ही CH3 ग्रुप लगा है ना, O के साथ यहाँ पर ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं बोलो, यहाँ पर ही O के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर में भी ये CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पर भी तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। पर दिख रहा होगा कि ये पूरा O+ यहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये O+ CH3 और H पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है तो ये जो C कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आस्ते आस्ते समझने का ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये वाला, ये JEE मेंस में पूछा है 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव
चार्ज आ गया, है ना, समझ में आया। जब H+ अटैक किया, मतलब हाइड्रोनियम आयन का H+ और H2 टूटा, तो H+ का क्या काम था, H+ जो यहाँ का O था, जो ये वाला O था, कहाँ गया, ये O था, ठीक है, जो साइक्लिक था, साइक्लिक का एक O को तोड़ के वो क्या किया, इसको प्रोटोनेट कर दिया। प्रोटोनेट करने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है O, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव होने से अनस्टेबल होता है, हम बताए थे, वो निकल गया। अब यहाँ पर ही बचा पॉजिटिव, सी के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, सी के ऊपर पॉजिटिव है, मतलब वो अनस्टेबल है अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर है, H दिख रहा है ना, ये वाटर भी था, तो वाटर का वो लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर ही अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है, दिख रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं हम, पूरा अच्छे से बताएंगे। ये अटैक करता है, ठीक है, लोन पेयर पे क्या करता है, अटैक करता है। और लोन पेयर पे अटैक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही CHO ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। ये लोन पर अटैक करता है यहाँ पर पॉजिटिव पे, तो ये फिर से एल्डिहाइड ही बन जाएगा। और वैसे ही जैसे यहाँ पर तुम्हारा OCH3 निकल गया, मतलब एक ग्रुप निकल गया, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ से तुम्हारा OCH3 निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट में बचेगा बस यही चीज़, ठीक है, इसको एक लास्ट में बस बचेगा यही, ठीक है, मतलब कि जो साइकिल टूटता है, साइकिल टूटने के बाद फिर से वो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा करके बताया कि कैसे करना है, देख लो एक बार, ठीक है। H+ अटैक करता है तो प्रोटोनेट हो जाता है, प्रोटोनेट हो गया ये वाला, देखो यहाँ पर प्रोटोनेट होने के बाद ये वाला चीज़ निकल जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ही प्रोटोनेट होने के बाद ये वाला चीज़ निकल जा रहा है, फिर H2O का वाटर अटैक करता है, मतलब ये लोन पर अटैक करता है। इस पर अटैक करने के बाद होता क्या है, यहाँ से फिर से ये मिथाइल निकल जाता है, मिथाइल निकलने के बाद यहाँ पर COH लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक किया है, ठीक है। और यहाँ पर ही तो ये वाला चीज़ तो सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया होगा, तो मतलब कि जो तुम्हारा कहाँ ये R बना होगा, वो R कुछ एल्डिहाइड ही बना होगा, ठीक है, एल्डिहाइड ही बना होगा, पक्का है, ठीक है। R क्या बना होगा बताओ, R इस तरीके का कंपाउंड बना होगा ना, एल्डिहाइड बना होगा, मतलब कि ये OCH3 और यहाँ पर एल्डिहाइड बना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो NaBH4H2O जो कि रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होने पे क्या होता है, रिडक्शन होने पे क्या होता है, बस यहाँ पर ही हम लोग एल्डिहाइड का जगह के लिख देंगे CH2OH, मतलब कि अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम पूरा करके बता, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था ना, देखो OH यहाँ पर ही OH है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिग्री कीटोन बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, एक्सेस CR3। फिर यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल की मदद से यहाँ पर एक एसिटल साइक्लिक बना। फिर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन का CH3 यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर O- हो जाता है, और इसका CH3 यहाँ पर जाके लग जाता है, ठीक है। और ये वाला एसिटल साइक्लिक जो है वो तो ऐसे ही रहता है। फिर H3O के साथ जब रिएक्शन होता है, H3O के साथ जब रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जाके OH लग जाता है और CH3 लग जाता है, और यहाँ पर ही एल्डिहाइड बन जाता है। और ये जो एल्डिहाइड लगा, ये एल्डिहाइड के लिए हम इतना बड़ा जो रिएक्शन मैकेनिज्म अभी समझाई यहाँ पर ही, ठीक है, कि यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाता है, फिर ये निकल जाता है, फिर वो निकल जाता है, ठीक है, नीचे वाला फिर ऊपर वाला, फिर उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड ही लास्ट में एंड में बनता है, ठीक है। तो तब से हम यही समझा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ही तुम्हारा एल्डिहाइड बन गया है। फिर एल्डिहाइड के साथ जब रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होने के बाद फिर से लास्ट में CH2OH हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है जब ये जो हाइड्राइड आयन है जब कार्बोनाइल आयन पे अटैक करता है, तो देखो ये H+ फिर इसको मिल जाता है, तो वो CH2OH बना देता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ क्वेश्चंस आया हुआ है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं JEE मेंस में।